इवनिंग सबको हम ये 7th एसटीजी वर्ल्ड एसटीजी फोरम का वेबिनार में सबको का स्वागत है। This webinar is focused on a part of Goal 16, which is about promoting peaceful and inclusive societies, providing access to justice for all, and building effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. In today's webinar, we will look at local government institutions, as they are a major player in the implementation of most SDGs. Skilling local, municipal, and Panchayati Raj institutions will help improve delivery of essential services in poverty alleviation, employment, education, health services, as well as a host of other goals from clean and green to sustainable communities. I will now hand this webinar over to Stab, who will be our moderator for this webinar. Thank you, भैया। आज का जो विषय है स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन फॉर इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट, और आज का जो हमारा पैनल है, मुझे लगता है कि अब तक की जो वेबिनार हुई है उसमें सबसे ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर और जो बिल्कुल जिन लोगों ने सीधा प्रभावित किया है वो लोग आज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुनील शुक्ला जी हैं, डीजी हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। डॉक्टर संजय सराफ जी SIRD के डायरेक्टर हैं, पिछले 25 साल का अनुभव है उनके साथ में। डॉक्टर अर्चना पाटनकर जी हैं, आप NSDC में कंसल्टेंट हैं और बहुत लंबे समय से आपका स्किल डेवलपमेंट पे काम चलता है। और एक योगेश ताम्रकार जी अपने मेयर हैं, सतना के मेयर हैं, पॉलिटिशियन के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंडस्ट्री है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो आज हमें इन सबको सुनने का मौका मिलेगा। सबसे पहले इनवाइट करता हूं डॉक्टर सुनील शुक्ला जी को। एज आई टोल्ड यू, ही इज DG ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, Ahmedabad. He is credited with the pioneering innovative models in research, education, policy advocacy, corporate efficiency, startups, MSME growth, and grassroots sustainable livelihood. Dr. Shukla has institutionalized entrepreneurship in formal education and institutes of national importance with the launch of internationally recognized postgraduate program and target-oriented result-driven models in entrepreneurship. As the editor of the premier scholarly journal of entrepreneurship published by SAGE, and as the lead of the Indian chapter of the world's largest annual study of entrepreneurial dynamics, Dr. Shukla continues to strengthen entrepreneurship within and outside the country. Besides India, several regions of Southeast and South Asian countries, Africa, the USA, Iran, Uzbekistan, have also sought his support in rooting entrepreneurship successfully. Dr. Shukla, you're most welcome, sir. Thank you so much. Thank you so much. Dr. Shukla will speak on entrepreneurship and government initiative. Ji. Thank you so much. Thank you for the common compliments and inviting me. Let me first appreciate the efforts of DRI in organizing this series of webinars, and particularly the theme of this webinar is very, very important. As you know that, at different forums, people have been talking of entrepreneurship, and since we are just, we mentioned, I think Vasanji mentioned that inclusivity. So I would say that entrepreneurship is one of the important instruments for bringing inclusivity and diversity in the society. This is a very, very inclusive subject, and it welcomes anybody from any caste, creed, language, age. Those who have that entrepreneurial acumen, they can become entrepreneur. EDII was established in 1983, and for the last 40 years, we have been working at the grassroots level, mostly at the grassroots level and MSME. Our forte is micro, small, and medium enterprises. And we have modest successes in institutionalizing entrepreneurship. And we have been talking of entrepreneurship when hardly people believe that entrepreneurs can also be created, like 40 years back. Now, there are a number of institutions which are conducting entrepreneurship development programs. They are advocating. All these good things are happening.
But in the beginning, hardly people believed, and the common belief was that entrepreneurs are born, and unless and until you are born in a particular community or the family or associate that is associated with the business, you can't be a successful entrepreneur. So EDI, along with several other institutions, in the beginning broke this myth, and today people believe that yes, whenever we are conducting the program today, they don't ask whether entrepreneurs can be trained or not. They ask that how entrepreneurs can be trained and what can be done. What is the business approach? That's the change that has happened. Much credit goes to the society, to the youth of the country. We have been reading in the newspaper that lots of startups are also emerging. Close to about 1 lakh or maybe more than 1 lakh startups are there. About 10 years back, the situation was quite different. Hardly few hundred startups were there, but now it has substantially changed. We have unicorns, and most of about 2/3 of 110 plus unicorns have emerged during last 3 years, post COVID. During the COVID time, hardly we had 35 unicorns. And if we look at it, if we look at the NASSCOM report, NASSCOM says that most of the startups have not only emerged in the technology domain, but even in the non-technology. About 53% startups are there in the non-technology. 47% are only in the technology. What it means that there are equal opportunities for both, whether you come from technology or non-technology background. The requirement is that what kind of entrepreneurial thoughts and actions that you have or you propose to undertake. It is I mean, while all these are very healthy and it's nice to go through this data, but there's also a harsh reality that many of the startups which are emerging, they are closed down within a year, very soon. About 70-80% mortality rate is there, which is a matter of concern. We have done some study. We have studied incubation centers, and one of the reasons that we found out that our technocrats or those who are on campuses, they are much enthused about an idea, but often they fail to differentiate with idea. That idea is not an enterprise. That idea has to be developed further to weave in and around a business. So together with the technological incubation, it is the entrepreneurial incubation that is equally important, if not more. And this is what we have been propagating, we have been training, we have been trying to share our views and virtues about that. This particular webinar, I would focus on what is happening at the grassroots level and what kind of support is available. I will give some certain examples with which our institute is associated. We are associated at the grassroots level with a very important intervention of Government of India MORD NRLM division, together with the state rural livelihood missions. We are working with them for a program which is supposed to be the world's largest rural entrepreneurship program, and that is SVEP. I do not know how many of you are aware of that. Startup Village Entrepreneurship Program. It is by the Non-Farm Livelihoods Division of the MORD, and the program aims at understanding the demands of the local population and helping them with certain businesses which can serve the local demand. It's the first stage. And in the first stage, we have there are two NROs, EDI, and there is a Kutumbushree down south in Kerala. So together we have been working. So far EDI is concerned, I think there is some disturbance. EDI. Very clearly, Bhai Sahib. I think there is some. We can hear you very clearly. I find it difficult because screen keeps on. I think flashing. There is some irritant in the screen. Anyway, I'll continue. So we have been working in 15 states across about 82 or 83 blocks and trained close to 85,000 entrepreneurs. 62% of them are women. And in the second stage now, under an intervention which is based on the cluster model, the first stage was that understanding the local demand,
by way of surveying the each and every household of a particular block, each and every enterprise of a particular block, and understanding the demand supply gap, and based on that enterprises were established. Now, as far the second phase is concerned, which is also launched in several blocks, if not all, that how can they also serve to the people or the demand outside their block. So going beyond the block. And I think Government of India has ambitious plans on that. And it is deep rooted in the local SSG network, how strong that self-help group network is there in a particular block or of a state, and there the program is rolled out. So this is one such program which is created by the local institutions, local governance model, because unless and until state rural livelihood missions are there, we cannot understand the local situation and the grassroots requirement and what is the structure of the SHG, etc. See, this is one such example I would say. So this, based on this, I think Government of India has probably is making up mind, or it has decided to spread this program to several other blocks and the states of the country. Good thing about this Startup Village Entrepreneurship Program is that not only it creates local enterprises, but the last mile delivery, the local resource persons are trained and developed in a 2-month training program. So with or without that program, or even if the government decides to phase it out, withdraw from that intervention, the resources are available. And these last mile delivery resources are known as CRPEP, Community Resource Persons Enterprise Promotion. And we have been working with about 1,500 CRPEPs in the country in these 70-75 blocks, 80-85 blocks. And mostly these CRPEPs, they are from the same place, same local population, they know them, and the programs or the developmental models or the mentoring, hand-holding, guidance, it is given at the convenience of the end user, that's the beneficiaries, maybe in the evening, maybe in the morning, because 62% women are covered in the program and they have established their enterprises. Second unique feature of this is that while we try to give them certain business models, we only prepare business plans, business models, and try to connect them with the financial institutions for credit linkages. But not many of them are interested in borrowing from the institutions. So they would like to go for a relatively smaller support, maybe about 50,000, 60,000 on an average for an enterprise, which is the total project cost maybe slightly above 1 lakh rupees. So there is a fund created, a joint fund between NRLM support and SRLM support, and that community resource fund, it is helpful for supporting these enterprises for establishment of their enterprises. And repayment rate is very, very high. Almost NPAs are negligible. So this has been possible only because of the local connect. Otherwise, this also would have probably been unsuccessful, like several other which do not have the local support or local connect. This is one such scheme, I would say. Similarly, there are other schemes also and other projects. In Gujarat, we are working. There is one project that we are working. It is a Hastakala Setu. A Hastakala Setu is hosted by Department of Mines and Industries, Government of Gujarat, and they have cottage industries wing within the department. And one of the observations was that particularly the weaving, there are certain weaving forms which were on the verge of extinction almost. We are aware of Patola. We are aware of there are Kalamkari is there, Rogan is there, but there are certain art forms where hardly one family is there. Just 5-6 members. Rogan is a very, very popular art form on the textile, but only 6 members of a particular family are there. Nobody else is aware and involved in that.
The second challenge is that there is hardly any innovation or the use of technology. Even for the handicraft, handiwork, there has to be certain technological interventions. There should be modern design interventions. There should be support for marketing efforts within the country, outside the country, or within the country at different places. So for that, the government engaged us, and we have been working with them. So initially, we started it in 2020. It is 3 years back, and we have been working with all these weavers. And currently, we have trained about 20,000 plus weavers, and the response is fabulous. It's a very good response. Around that time, hardly the sale was about 1 crore through these products, and during last 3 years, I mean, the sale has started during last 1.5 years. They have already crossed about 35-40 crores total, and we are optimistic that by March 25, it should be we should be able to cross about 100 crore. But that is not the real success. Real success is that it has led to filing of GI, which is very, very important. One art form which is known as Mata Ni Pachhedi, because Wagri community in earlier days was not allowed to enter the temples, and they used to go behind the temples, and they used to spend their time by doing certain artwork, and that has come to be known as Mata Ni Pachhedi, and it's a different block form of painting. And that GI we have filed, and one such artifact our Honorable Prime Minister gifted to Rishi Sunak ji, of Prime Minister of UK. So this kind of visibility. 2 minutes. Yes. Please take into consideration the time limit. Sure. So please conclude in 2 minutes. Then we will have some questions from the our audience. Sure. So this is an example I was giving, the involvement of the local government, because we are working in covering in all 33 districts, and the local administration, DIC is our local connect, and with them we are working. And also we have created a workforce of mentors and subject experts of about 100 plus only within this project, I'm telling. So local connect is important. We are all aware that there are several such schemes like PM EGP, where without local support we cannot create entrepreneurs. We are also working in PM Anusuchit Jati Abhyuday Yojana in Uttarakhand. So these are all various interventions. Because of constraints of the time, probably it may be difficult for me. I would like to stop here and open for any questions that you might have. But I believe that local connect is very, very important for understanding, for preserving, for developing the spirit of entrepreneurship. Thank you very much. Thank you. बहुत अच्छी बात आपने बताई कि लोकल कनेक्ट और सपोर्ट और हैंड होल्डिंग की बहुत बड़ी जरूरत है, और बड़ी मात्रा में अपने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। और पर आपने बताया कि 70% बंद हो रहे हैं, पर 30% अपने चल भी रहे हैं। मेरे अंदाज में शायद दुनिया में हम सबसे आगे हैं जहां स्टार्टअप्स इतना तेजी के साथ इतना कर पा रहे हैं। जी आपने इंक्लूसिविटी की भी बात की, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब मैं ऑडियंस से चाहूंगा कि कोई अगर कोई प्रश्न अपना करना चाहते हैं और या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो। बड़ा अनुभवी उनका वक्तव्य था, और अगर आप कुछ और डॉक्टर साहब बताना चाहते हो या कुछ अपना पेपर, तो आप प्लीज शेयर विद अस। हम लोगों की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी प्लान्ड है, 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हम वहां पे भी इसको, और उसमें जो कंपेंडियम रहेगा उसमें इसको ले जाएंगे। अब मैं इनवाइट करता हूं ऑडियंस से, मतलब जो और लोग जुड़े हैं अपने साथ में, कुछ पूछना चाहते हो तो अपना हैंड रेज करें। वसंत भैया। Somebody has raised a hand. Is it possible to get documentation? Certainly we are doing this documentation. First international conference we have made a compendium of first international conference, and then second international conference also we have documented it. Others, this is the 7th in the series. So we are also planning to do the documentation of these seminars also. So something comes like this, and we will include it in our next compendium.
सूरज जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हो? सूरज जी, तेजेंद्र जी? चलिए तो फिर मैं इसमें मैं थोड़ा ऐड करेंगे. Entrepreneurs for the fulfillment of SDGs, all kinds of initiatives are required. A lot of if we concentrate solely on governmental efforts, we won't get very far. We need to have private enterprise also participating. The very good example is with EDII. I was in Ahmedabad 2-3 months ago. There was a boy who was being they've got a cradle which is a incubator, entrepreneur incubator, and that one boy called Dhruv Patel is being incubated in cradle, and he has invented a portable machine for early detection of cancer, breast cancer. We had had him participate in one of our earlier webinars. Now that kind of initiative, which directly affects SDG 3 on health, is a kind of innovation that is very, very important. So the role that EDII is doing and strengthening and using the whole India Panchayati Raj and municipal corporation infrastructure to reach entrepreneurs of this kind is very, very important. और ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको डॉक्टर शुक्ला और कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो लोग आते हैं वो अहमदाबाद में लोकली है तो आपके पास आ गया, परंतु अपना सतना में कोई बैठा है, चित्रकूट में कोई बैठा है, you know, how do we reach them to get their innovations which directly affect our SDGs? So, you know, there's so many innovations on green technology for clean air, clean water, pollution free, solar, so many innovations, and they're entrepreneur driven. And when they tie up with local bodies for better implementation of services, we can go a long way to accelerate SDGs. So यही एक point था. Suraj, if you'd like to add to that. Please unmute yourself. Unmute कर लीजिए सूरज जी, please. While government is playing a big, can you hear me? Right. Hello, can you hear me now? बिल्कुल आ रही है. Yeah. So while government and government programs play a big role, अगर हम कुछ और देशों के उदाहरण देखें तो जहां linking of the government's cash and benefit transfer programs to skill development managed by a private entity, तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ब्राजील का टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ट्वेट बोलते हैं, तो उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट बनाई. इसका उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ डिटेल में. आई टेक 2 minutes. सेक्रेटेरिएट ऑफ प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसके अंतर्गत यंग पीपल आर बीइंग प्रिपेयर्ड. जो लोग रजिस्टर्ड हैं, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम ब्राजील का बहुत मशहूर है, बोल्सा फैमिलिया, जिसमें सारी डिटेल डेटाबेस मिलती है उनको. उसमें जो यंग पीपल जो उसमें रजिस्टर्ड हैं हाउस होल्ड्स के, तो उनको जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रिपेयर किया जाता है और तैयार किया जाता है. और इनका एक बहुत बड़ा फेडरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्रोनाटिक, और उसकी एक ट्रेनिंग आर्म है डेडिकेटेड फॉर दिस विच इज कॉल्ड सिस्टेमा एस. इसकी जो इसका दे हैव रीच्ड 8 million Brazilian workers for training and reskilling, and the main focus is both on local and global competence. Okay, the idea of creating this accelerator is to close the skill gap between the workforce of today with the workforce requirement of tomorrow. और उसके लिए रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग जो है टू मीट मोर डिमांडेड कैपेबिलिटीज. और इसका जो 3 जो मेजर टेक अवेज हैं, पहला है कि प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट, देयर इज अ ट्रेनिंग लेवी फॉर द एक्टिविटी, okay, which is a tax levied on private firms by the government for the purpose of training. This is managed by a private sector non-profit organization, SENAI.
In most developing countries, levy and training जहां पर होता है, they're managed by public sector. The advantage of private sector managing the levy and training is that better alignment of skill with private sector needs. Okay, तो ये flexibility मिल जाती है. दूसरा है कि skill training for the labor market. तो जैसे कि ब्राजील में जो चूंकि शहर और भी डेंस हो रहे हैं और उनकी सिटी मोबिलिटी प्लान जो बन रही है उसमें नए स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑफर करते हैं एंड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री डिमांड. दिस मीन्स कि 80% ऑफ द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्रेजुएट्स फाइंड जॉब्स विद इन 6 months ऑफ ग्रेजुएटिंग. तीसरा है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मतलब कि दायरे में लाने के लिए बहुत ही घनघोर प्रयत्न किए जाते हैं, एक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं. तो जैसे कि जो प्रोनैटेक है, जो इनका एजुकेशन और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसमें गर्ल्स एंड यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज, जैसे मैंने बताया कि इनका बोलसा फैमिलियर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है, उसकी डेटाबेस है, उसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं लड़कियां और यंग पीपल from poor families to access the TVET program, which encourages poor families to send first their children to school and then move seamlessly from school to vocational training and education. तो एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मीनिंगफुल तरीके से किया गया है, which does not involve transfer of funds from सरकार to private body. सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल सूरज जी ने दिया. मलेशिया में भी इस तरह से उनका HRDF है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड, वो इंडस्ट्री से लेते हैं और स्किल ट्रेनिंग करते हैं. हमारे यहाँ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जो RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एंड रीलर्निंग, और उनके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन और EDP वगैरह के लिए ये सब कुछ है. 1 वीक से लेकर 9 मंथ तक का प्रोग्राम वो सपोर्ट करते हैं. PM दक्ष करके है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है. एंड the preference is given to those who are from marginalized communities. साथ ही एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो CSR सपोर्ट अभी अवेलेबल हो रहा है स्किल ट्रेनिंग के लिए, I think that's a low hanging fruit for all of us interested in providing skill training, and lot of CSR organizations are there. We ourselves, we are working with about 15-20 CSR organizations for micro enterprise promotion, women empowerment, livelihood and similar such interventions. तो उसमें भी हमको एक इन्वॉल्व करना चाहिए. जी, थैंक यू. There are 2 hands raised, आशीष सिंह and विक्रम केसरी जी. Allowed to talk मैं कर रहा है. आशीष पहला. आशीष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रम केसरी जी. आशीष नहीं है, उन्होंने हटा लिया अपना. Allowed to talk करें. आशीष जी, विक्रम जी, you need to unmute और फिर बोलना. विक्रम जी, आप अनम्यूट करना और बोल लीजिए. I think it may be a mistake. We'll carry on. If we can do Yogesh ji now because he's बिल्कुल. हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, उनका इंट्रोडक्शन इतना लंबा है कि मैं क्या बताऊं उनके बारे में. मतलब हम लोगों के साथ बहुत लंबे समय से 2nd जनरेशन बल्कि 3rd जनरेशन सोशल एंटरप्रेन्योर उनको कहा जाए वो सही शब्द होगा. पॉलिटिशियन भी हैं और अभी सतना जो अपना जहाँ पे चित्रकूट अपना जिसके अंतर्गत आता है जिस जिले में, उस शहर के फर्स्ट सिटीजन मेयर हैं वहाँ पे. MTNL के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके बोर्ड में उसके रूप में. अभी तक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वाइस चेयरमैन रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे. बीजेपी का जो कोऑपरेटिव सेल है उसके स्टेट कन्वीनर, विंध्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक्स चेयरमैन, साथ में डिस्ट्रिक्ट सतना का भी जो इंडस्ट्रियल बोर्ड उसके भी चेयरमैन रहे. आप ट्रस्टीज काफी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ट्रस्टीज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं. और एक इनका जो ट्रस्ट है पद्मा शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से बहुत ज्यादा एक्टिविटी सतना और उसके आसपास के क्षेत्रों में करते हैं.
इनोवेशन इनका एक फोर्ट है सबसे बड़ा, यानी कि इंडस्ट्री में भी आपके पिताजी पाइनियर थे वहां पर सतना जिले में, और आज उसको बढ़ाते बढ़ाते आप और आपके बाद आपके बेटे भी एक बड़ा ही एक इनोवेटिव तरीके से इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं। कई पुरस्कार मिले हैं आपको, राष्ट्रीय निर्माण रत्न पुरस्कार 2003, राष्ट्रीय उद्योग गोल्ड अवार्ड 2005, इंदिरा गांधी श्रोमणी अवार्ड 2010 में मिला आपको। ग्लोबली कई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, बेलारूस में, कायरो में, बेल्जियम में। विदेशों में भी आपको पुरस्कार मिले, हाल ही में लंदन में जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पे आपको सम्मानित किया गया था आप उसके लिए। सतना में आज जो इनोवेशंस हो रहे हैं एज ए मेयर, जो वहां पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो उसके लिए आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज मैं भैया इनको बुलाऊंगा और ये बोलेंगे सतना एक्सपीरियंस ऑन स्किलिंग म्युनिसिपल वर्कर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज फॉर यूथ एंड अनएम्प्लॉयड। आज तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो फिर भी अभी हम लोगों के बीच में है, अपना कमिटमेंट हमेशा पूरा करते हैं। आदरणीय योगेश तमरकर जी। तो अमिताभ जी, कैन हेयर मी? या, थैंक यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बसंत जी, अमिताभ जी, सुनील जी, सूरज जी। आपने हमें एक अवसर दिया इस बीच में सभी के पास अपनी बात रखने का, और मैं बहुत शॉर्ट में जो अर्बन डेवलपमेंट को लेकर कुछ विषय रहते हैं, इशूज रहते हैं, स्पेशली फॉर स्केलिंग म्युनिसिपल वर्कर्स, उसको लेकर मैं कुछ पॉइंट आउट रखूंगा। सबसे पहले चीज तो हमारे ध्यान में है कि हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या एवरी ईयर 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख बढ़ रही है एवरी ईयर। ये हमारी वृद्धि हो रही है, और ये जितने भी हैं सभी युवा हैं। मतलब आज जो पैदा हो रहा है वो 5 साल, 10 साल, 18 साल बाद वो हमारी यंग जनरेशन होगी। इट मीन्स कि विश्व के, वर्ल्ड के सबसे युवा कंट्रीज में आज भारत खड़ा है। ये हमारे ध्यान में बहुत स्पष्ट ये फिगर रहना चाहिए। दिक्कत कब आती है? जब ये जो हमारा यूथ आता है, पढ़ लिख कर स्टडी करता है, उसका एम बहुत जो रहता है वो कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। उसको लगता है कि बस मैं अप्लाई करूंगा और जॉब मेरे को तुरंत मिल जाएगा। जॉब के बारे में जितने भी डाटाज हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स के फिगर्स हैं, उसमें यह है कि आउट ऑफ 100 सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिलता है आइदर गवर्नमेंट सर्विस में, जितने भी हमारे होते हैं उनको जॉब नहीं मिलता, और वो उसको लेकर किसी न किसी रूप में क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि हमको तो जॉब नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। मैं एक और फिगर आपको बताना चाहता हूँ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय हमारी जनसंख्या थी 35 करोड़, 35 करोड़, और उस समय अर्बन एरिया में रहने वाली जो संख्या थी वो थी ओनली 6 to 7 करोड़। 2021 के जो हमारी जनसंख्या की गणना हुई उसमें हम 130 करोड़ हो गए, और वो 130 करोड़ में से 45 करोड़ लोग अर्बन जगह में आकर रहने लगे, अर्थात शहरों में रहने लगे। गांव को उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं बात करता हूं 2047 की। अगर हम 2047 की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 160 करोड़, और शहरों में रहने वालों की संख्या हो जाएगी 80 करोड़। ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमको जो अर्बन सिटीज हैं उनको जो भी डेवलपमेंट करना है वो आगे के 2047 को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अगर हम आज भी 15 फीट की सड़क है और उसको कंप्रोमाइज करके दबाव में इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ेंगे, 15 ही रहने देंगे, तो आप पैदल भी नहीं चल पाएंगे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारा जो डेवलपमेंट का विजन है वो बहुत क्लियर है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब स्किल डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो हमारे यहाँ का वर्क कल्चर जो है वो बड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि नेगेटिविटी से भरा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में खूब काम करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स खूब काम करते हैं, लेकिन अगर मैं म्युनिसिपैलिटी की बात करूं, जहां मैं मेयर हूं, वहां के लोगों की बात करूं, तो उनका फोकस क्या रहता है कि 30 दिन में 15 दिन ड्यूटी चले जाओ, बाकी एडजस्टमेंट करा के किसी तरह से अपना काम कर ले। एक तो ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि हम शॉर्टकट चल के हम एक भी दिन नहीं जाए। तीसरा सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है
उनका स्किल डेवलपमेंट को लेकर कभी किसी ने कोई प्लानिंग ही नहीं की। इसके कारण से मेहनत तो वो कर रहा है, लेकिन वो उस तरह से जैसे एक प्रोजेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा एक पहला सजेशन ये है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो टेबल में बैठने वाला बाबू हो, चाहे वो हमारे ऑफिस में बैठने वाला सीनियर ऑफिसर हो, सभी को उसके जॉब के आधार पे उसका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के कार्यक्रम प्लान करने चाहिए, जिससे कि वो उस सब्जेक्ट का मास्टर हो जाए। हो सकता है डिग्री कम हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो अगर हम वो ये किसी तरह से उसको ये करने में सफल होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आज भी मेहनत वही कर रहा है। मैं आपको सतना नगर निगम का 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे मेयर बनने के बाद मैंने 2 बड़े डिसीजन लिए। मैं यू कैन बिलीव, जो आदमी नगर निगम में स्वीपर में आज से 20 साल पहले भर्ती हुआ, जिस पोस्ट पे हुआ अर्थात अनस्किल्ड वर्कर के नाम पे, 20 साल बाद भी वो अनस्किल्ड वर्कर ही है। आप उससे कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो हमको रिजल्ट देगा? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने आने के बाद एक ही मीटिंग में, एक ही स्ट्रोक में 1000 मास्टर कर्मियों को अपग्रेड कर दिया, प्रमोट कर दिया, जो 2015 से पहले से नगर निगम में थे और स्टिल इज वर्किंग विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इससे क्या हुआ, उनके अंदर एक उत्साह आया, कहीं ना कहीं उनको लगा कि कोई तो आया है जो मेरी सुन रहा है। हमने प्रमोट किया, अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड कर दिया, उससे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई, उनको एक उत्साह आ गया, महीने के 1000 रुपया एक्स्ट्रा भी मिलने लगे, एक प्रमोशन भी मिल गया। नंबर 1। नंबर 2, अब जो हमारे नगर निगम में मास्टर कर्मी रहते हैं, तो जितने गंदे काम होते हैं, नाली में घुसना, सफाई करना, उसमें जाते हैं, उनका चूंकि वो मास्टर कर्मी है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इस कारण से उनको हम कभी कोई सुविधाएं नहीं देते। ना इधर हम उनको ग्लव्स देते हैं, ना बूट्स देते हैं, ना उनका इंश्योरेंस है। अब कल को वो कोई गया है और कोई स्नैक बाइट कर दे और वो मर जाए, तो नगर निगम बोलेगा हमारे को कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे टेम्परेरी वर्कर थे। सतना नगर निगम में मैंने ऐसे 1000 लोगों का 5 लाख रुपए तक का रिस्क कवर करके इंश्योरेंस कराने का प्लान कर लिया है। फाइनल स्टेज पे है, जैसे आचार संहिता खत्म होगी तो ये मैं उनका लागू कर दूंगा। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है। तीसरा, जहां वो रह रहे हैं, ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जहां वो रह रहे हैं 20 साल 30 साल से रह रहे हैं, उनके दादाजी भी नगर निगम में थे, पिताजी भी नगर निगम, उसको किसी ने देखा ही नहीं, उसके कारण से उनका मन खराब है। क्यों? पहली बात तो हम क्या बोलते हैं, वो तो गंदी बस्ती में रह रहा है, हम उस बस्ती को गंदा बोलते हैं और हम मीटिंग्स में प्लान करते हैं कि हम अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़े। हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने एक सुझाव अहमदाबाद ऑल ओवर इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में दिया था, माननीय हरदीप पुरी जी ने एक्सेप्ट किया, उसको उन्होंने कहा मैं करूंगा। हम गंदी बस्ती शब्द हर एक रिकॉर्ड से बाहर कर दें, उसकी जगह हम सेवा बस्ती का नाम दें, क्योंकि वो हमारी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा करें। जब ये भाव होगा, जब दोनों के बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कहीं ना कहीं ये आप मानकर चलिए कि उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, हम उनको एजुकेट करें, उनके वर्क के आधार पे उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारें, उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बैकअप दें, थोड़ा प्रमोट करें। ये सब जो करेंगे तो उससे हमारा जो स्किल डेवलपमेंट जो हमारा विषय है, उस पर कहीं ना कहीं अपने को सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आता हूं अर्बन डेवलपमेंट को लेके, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बोलूंगा, अभी 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे। वेस्ट वाटर से पावर जनरेशन, अब ये एक ऐसा जरूरत है, आज पावर का कंजम्पशन पर डे बढ़ रहा है। जब 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार आई थी तो 3800 से 4000 मेगावाट जनरेशन था, आज 28,000 मेगावाट जनरेशन है। फिर भी कई बार बोलते हैं पावर नहीं है। तो इसलिए हमको छोटे छोटे जगहों पर बैठकर हमारा जो वेस्ट वाटर ज्यादा सीधे नदी में मिल रहा है, उसकी प्लानिंग सतना में मैंने कर ली है, उसको हम साइफन सिस्टम से ऊपर उठाएंगे और जो 25 केवीए के हमारे जनसेट आते हैं, उसको हम 4 पॉइंट हमने सतना में सेलेक्ट किए हैं, उनको हम लगा के, और नगर निगम खुद का पावर जनरेशन करेगा। ये अपने आप में कुछ हटके करने का सोचा है। एक आपको अर्बन लीडरशिप तैयार करनी पड़ती, अच्छा सोचने वाले व्यक्ति बिना प्लानिंग के ढूंढ के उनको ट्रेंड करने के बिना नहीं आने वाले, क्योंकि वो एक
माइंडसेट है सरकारी नौकरी, ये सबसे गलत शब्द है। सरकारी नौकरी है लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सरकारी नौकरी में रहते हुए, इसलिए हमको अर्बन लीडरशिप भी उतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी और उनका ग्रुप बना के, और जिस तरह का सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, इसी प्रकार के वेबिनार उन लोगों के साथ बैठ के हमको करना पड़ेगा। 3C, ABC का C, 3C पर हमको फोकस करना पड़ेगा। वो है क्लैरिटी, कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी क्लैरिटी नहीं होने से, कंसल्टेशन नहीं होने से, कम्युनिकेशन नहीं होने से बिगड़ जाती है। इसलिए इन 3 पॉइंट्स को हमें फोकस करना पड़ेगा। हमें जो वर्कर है उसका इंश्योरेंस कराना, ये मैंने आपको बता दिया। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इन्हीं सब विषयों में जन भागीदारी को शामिल कर दें, जो हमारा निगम का एम्प्लॉय नहीं है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं या इस प्रकार के सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, अगर हम उनको जन भागीदारी के रूप में नगर निगम में, अर्बन में एज वेल एज रूरल में अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप ये भी हमको डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे कहने में थोड़ा सा झिझक हो रही है, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ नेताजी हमारे लीडर बनेंगे तो नेताजी के एम कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने अगर क्वालिटी लीडरशिप डेवलप की और उसको हम प्रमोट करके नगर निगम में किसी भी पोस्ट पे लाएंगे तो वो विजनरी आदमी होगा, विजन के साथ काम करेगा, तो शहर भी हमारा बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बात और आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ, हमारी लंबा हो रहा क्या अमिताभ जी? हाँ, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हाँ, थोड़ा जल्दी कंक्लूड करेंगे जी। बस 2 मिनट जी 2 मिनट कर रहा हूँ। महिलाओं को लेकर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन न्यूट्रल रहते हैं। इसमें 2 सजेशन मैं दे रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ अपने यहाँ। एक तो पिंक टॉयलेट हमको बनाने चाहिए एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, और वो हमारे हिंदुस्तान में कई शहरों में चालू हो गए हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ी जरूरत है, जैसे माननीय मोदी जी ने टॉयलेट्स बनवाए, उसी तरह से शहरों में, अर्बन सिटीज में हमको ब्रेस्ट फीडिंग चैम्बर बना के देने पड़ेंगे। आज माँ है, उसका बेटा है, वो कोई छिपने की जगह नहीं है, एक शर्म है, उस शर्म को दिखाना ठीक नहीं है। इस तरह के ये बिंदु अगर हम करते हैं। और दूसरा एक एवरी स्कूल, अब हम शहर को बना रहे हैं, अर्बन में शहर को बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एवरी स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, कंपल्सरी करना पड़ेगा। तो जो हमारी पानी की समस्या है उसमें भी हमको निजात मिलेगी। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम प्लांटेशन तो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमको डेवलप करना पड़ेगा, बहुत से शहरों में चालू हो गया है। अब इन सब के साथ 3R हैं जिनको हमें सबसे ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, वो है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। आज हमारी जो पन्नी निकल रही है, बहुत से नगर निगम, सतना में, रीवा में हम प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, उससे हम पावर जनरेशन कर रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था आई थिंक शुक्ला जी को, तो उन्होंने बताया कि अपने को इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए सतना में स्मार्ट सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए चालू है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सिमिलरली लास्ट पॉइंट, ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ये बहुत बड़ी जरूरत आज शहरों की है, वो हमारे सतना में है। मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई आता है, बहुत शहरों में है, 100 स्मार्ट सिटीज में ऑलमोस्ट सभी में है, तो अगर इस तरह का करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट, अर्बन सिटी डेवलपमेंट, इनको लेकर बहुत संक्षेप में मैंने बहुत कट शॉर्ट करके बताने का प्रयास किया है। आप लोगों ने हौसला दिया अमिताभ जी, बसंत भैया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। अपने मेयर साहब का, जैसा मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि आपका इंडस्ट्री का, सामाजिक क्षेत्र का और राजनीति का एक अनुभव जो 3 जो उसमें मिला है, तो मैनेजमेंट तो हम उनका सीधा देख रहे हैं, 3C, 3R, 1CCC, मतलब ये कुछ ऐसे बजवर्ड उन्होंने डेवलप किया और उसके आधार पे स्मार्ट सिटी सतना में जो काम किया जा रहा है, तो रियली हमने परिवर्तन देखे हैं, मतलब अपनी आंखों से देखा है कि विगत दिनों में जो परिवर्तन आए हैं आपके नेतृत्व में। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुछ लोगों को जो इस पे कुछ पूछना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो। प्रीति जी हैंड रेस कर रही हैं। प्रीति जी, वसंत भैया आप उनको अलाउ कीजिए। प्रीति जी।
मिस प्रीति, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप बोल सकती हैं। वसंत भैया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक्चुअली जो अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उसकी जो पोटेंशियल है एसडीजीज की इम्प्लीमेंटेशन में फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, वेदर इट्स इज इन हेल्थ केयर, वेदर इट्स इन एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है शहरों में, स्पेशली छोटा शहर जैसा सतना जिला है, सतना है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो लोग आते हैं उसको कैसा गाइड करना, कैसा उसको ट्रेनिंग देना, क्या सजेशन देना, जो वहाँ लोग बैठा है उसको कैसा हम लोग स्किल कर दो कि वो ठीक एडवाइस दे दो। जो अपना हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स है जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंडर आता है उसको कैसा हम लोग रीट्रेन करना इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। जो स्कूल्स चलाता है, जो आंगनवाड़ी चलाता है, उसका जो लोग है उसको कैसा हम लोग रीट्रेन करते हैं, ये विषय में हम लोग थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो है, जो हम लोग पूरा जो हम लोग का जो ये पूरा वेबिनार सीरीज है, दिस इज ऑन हाउ डू वी एक्सेलरेट द अचीवमेंट ऑफ एसडीजीज। सो दिस टॉपिक वाज बेसिकली टू कवर दैट कि जो हाउ विल वी डू दिस। सो वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स इन दिस इज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उसकी बहुत बड़ा रोल है इसमें। क्योंकि जो डिलीवरी होता है ये सब सर्विसेज की, जो मेजर स्पेशली एसडीजी 1 to 8 जो है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकारी ऑफिसेज एंड सरकारी स्कीम्स प्ले अ मेजर रोल, एंड their implementation is through government local body institutions. How do we make them more adaptable? How do we make them adjust to what the needs are today to help achieve these goals? This is where we have to think कि जो हम लोग का पास EDII है, जो मेयर है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग के पास है, अचरना जी है NSDC के साथ, इतना सारे हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, उसको नीचे तक कैसा रीच करके जो अपना जो जमीन पे काम करने वाला है, हाउ डू वी स्किल देम इंस्टेड ऑफ ओनली स्किलिंग youth, instead of skilling unemployed, how do we skill those who need to skill? ये विषय बहुत important है, and I think if we manage to have some outcome on that, it'll be very nice. बड़ी धन्यवाद भैया। सूरज जी और तेजिंदर जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। पहले तेजिंदर जी ने हैंड रेज किया। तेजिंदर जी प्लीज। थैंक यू मेयर साहब। मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त था, जयपुर शहर का मैं एडमिनिस्ट्रेटर था 1987 में। आपकी बातें सुनते सुनते मुझे लगा कि दुनिया ज्यादा नहीं बदली है, स्पेशली विद रिगार्ड टू सैनिटेशन वर्कर्स, विच इज अ वेरी सैड थिंग टू से। लेकिन आपका वक्तव्य बड़ा उत्साहवर्धक था, उसमें कई मुद्दे आपने हाईलाइट किए। मेरे को लगता है जो जिन पर अभी भी हम उतनी अटेंशन या प्रकाश नहीं डाल रहे हैं जितना हमें डालना चाहिए। सबसे मुख्य उनमें कैपेसिटी का इशू है कि स्टाफ रिक्रूट हो जाता है सालों साल, फिर उनके और कोई ध्यान नहीं दिया जाता, मोटिवेशन फ्लैग करती है। तो अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी बनाया है, जिसमें सूरज और मैं कुछ देख रहे हैं, वहां पर भी इस किस्म की चर्चा काफी हो रही है। तो एक मेरा सुझाव था और एक मेरी रिक्वेस्ट थी आपके लिए कि जो मेरे को जहां तक ध्यान है, सतना इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जहां से आउट माइग्रेशन काफी होती है। तो अगर इसका एनालिसिस कर लिया जाए कि जो बच्चे बच्चियां बाहर जा रहे हैं किस चीज के लिए जा रहे हैं, अगर हम उनको कुछ स्किल अपग्रेडेशन कर सकें तो जहां जाकर वो नौकरी करेंगे शायद उनकी इनकम में थोड़ा बढ़ावा होगा। और फाइनली आपने कई मुद्दों पर बताया कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि
DRI और हम लोग अगर इकट्ठे मिलके उनमें से कुछ जो आपको लगता है ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, अगर हम उनको डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि जब भी अब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं जिनके म्युनिसिपल सिस्टम्स बहुत बड़े हैं और जो साधन समृद्ध हैं, लेकिन सतना या सतना जैसे जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या रोड मैप हो सकता है? मेरे को लगता है आपके यहाँ से काफी लेसन्स मिलते हैं। तो अगर मैं और वसंत जी, अमिताभ और सूरज देखेंगे कि हम किस तरह से आपकी मदद कर सकें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। थैंक यू। मैं एक मिनट ले लो अमिताभ जी। जी जी अल्लाह, जो भी सर ने कहा प्रमोट करने के लिए, मैंने जिस दिन मैं फर्स्ट डे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गया और मैंने जो अपना स्पीच लोगों के बीच में दिया, वो 8 अगस्त की डेट थी, 8 अगस्त। 15 अगस्त को हमारा कार्यक्रम था झंडारोहण का। मैंने 8 अगस्त को ये अनाउंस किया कि मैं एवरी 15 अगस्त एंड 26 जनवरी जब मैं झंडारोहण करूंगा, तो इस 6 महीने के ड्यूरेशन में जो डिपार्टमेंट बेस्ट काम करेगा उसको मैं सबके सामने पब्लिकली कैश प्राइज 15,000 रुपीज में अपने पर्सनल उससे दूंगा, 15,000 रुपया। और मुझको बताने में खुशी हो रही है कि लोगों में कंपटीशन की भावना आ गई है सरकारी ऑफिस में, और वो दे आर डूइंग वेरी वेल, और वो प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझको मिल जाए। तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग करके हम उनको इंकरेज कर सकते हैं। थैंक यू। सूरज जी अनम्यूट कीजिए सूरज जी अपने को। नो, Unmuted, Suraj, speak. नो। तब तक मैं इंट्रोडक्शन और करा देता हूं। अपने बीच में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन श्री निखिल मुंडे जी भी बैठे हुए हैं। अभय महाजन जी हमारे संगठन सचिव है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो भी चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। उमाशंकर पांडे जी भी मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। उमाशंकर पांडे जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जल प्रहरी, उसमें अपना जल पे बहुत अच्छा काम है, पानी पे उनका। बाकी अगर निखिल भैया कुछ ऐड करना चाहें, कि बहुत वाइड एक्सपीरियंस है निखिल भैया का भी एंटरप्रेन्योरशिप में भी और गवर्नेंस में भी, तो अगर अनम्यूट कीजिए। एक अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा है पराली बर्निंग का, तो उसमें मेरे ख्याल से एनवायरमेंटल एसडीजी और जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का एसडीजी है, दोनों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसमें है कि पराली को हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू फर्टिलाइजर, और उससे एडिशनल इनकम कैसा किया जाए, और दूसरा हाउ टू कन्वर्ट पराली इनटू एथेनॉल और उसमें से रेवेन्यू जनरेशन कैसे किया जाए। तो एक समस्या है और उसके दो अच्छे सॉल्यूशन। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इशू, और वो उसके दोनों बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकालने में हम एफर्ट ले सकते हैं। Suraj, if you say something, you're unmuted. Speak, Suraj. You can be. चलिए नहीं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर संजय सराफ। एक 25 साल से भी ज्यादा लंबे समय का उनका अनुभव है स्किलिंग का। Sanjay Saraf is from 1991 batch of State Civil Services of Madhya Pradesh. He is presently Joint Commissioner of Development Indore Division and also Director of Mahatma Gandhi State Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Jabalpur, since last 8 years. MSIRD is an apex organization for rural development and Panchayati Raj and is working as a training institute, evaluation and monitoring of the ongoing projects, and doing research in concerned areas and feeding analytical reports to the departments. Institute is also working as the academic arm of department, fulfilling role of a think tank, and they are providing trainings to Panchayati Raj representatives, Gram Sabha, SSGs, etc. अपने लगभग 30 साल लंबे अनुभव को अपने साथ शेयर करेंगे श्री संजय सराफ जी। आपका विषय है the role of Panchayati Raj institution in skill development in rural Madhya Pradesh.
जी सर। थैंक यू अमिताभ भैया। सभी को नमस्कार। रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन स्किल डेवलपमेंट इन स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। मेरे समझ से ग्रामीण मध्य प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के अलावा जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो स्किल डेवलपमेंट की है। हम सब जानते हैं इस बात को, किसी समय हमारी ग्रामीण दस्तकारी दुनिया में सबसे अच्छी थी और धीरे धीरे हम उसके डेवलपमेंट पे हमने ध्यान नहीं दिया और वो पीछे होती चली गई। और जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है वो स्किल डेवलपमेंट की है। एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के साथ SIRD में काम करने का शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि हम लोगों ने पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में NSDC की एक स्किल काउंसिल CSDCI के साथ मिलकर के लगभग 62,000 रूरल मिशन को ट्रेन किया। और इस ट्रेनिंग में खास बात ये थी कि ये पहली बार ऐसा हुआ जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर के इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कराया। अदरवाइज ये काम CSDCI में जिंदाल और रिलायंस इस प्रकार के जो NGO हैं इनके, वो लोग इस काम को करते रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने CSDCI में एम्पैनलमेंट अपना कराया और उसके बाद क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ऊपर आवास का लक्ष्य था प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो चूंकि ये मकान बनने ही थे तो प्रत्येक जनपद पंचायत ब्लॉक पंचायत में हम लोगों ने 7 मकानों को चिन्हित किया और प्रत्येक 7 मकान में 35 रूरल मिशन को ट्रेनिंग मिली। इससे लाभ ये हुआ कि जिसका मकान बनना था उस हितग्राही को लगभग 45,000 रुपए की मजदूरी की बचत हुई और हमारे 7 रूरल मिशन जो हैं वो ट्रेंड हुए। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि 62,000 लोगों की ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, सर्टिफाइड हो चुके हैं और ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नंबर है। अब हम लोग आगे इससे प्रेरित होकर के दूसरे बहुत सारे विषयों पे भी स्किल डेवलपमेंट का काम अपनी ग्राम पंचायतों के सहयोग से करना चाहते हैं। जितने भी हमारे रूरल दस्तकारी है, बढ़ईगिरी हो, लोहारी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, अपने केस शिल्पी का काम करने वाले लोग हों, धोबी हों, जो भी लोग जो स्थानीय स्तर पे काम करते हैं उनकी स्किल को अपग्रेड करना और उसके साथ साथ एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन का काम करना, क्योंकि स्किल अपग्रेड होने से वो व्यक्ति मार्केट में खुद सस्टेन कर सकता है, ये बात सही है। लेकिन अगर कहीं बाहर जाने की वो इच्छा रखता है काम करने के लिए तो उसको एक नेशनल लेवल का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम लोगों ने बड़े संकल्प के साथ इस काम को किया और NSDC के साथ एफिलिएशन से लेकर के हर लेवल पे काफी दिक्कतें भी आई हम लोगों को, लेकिन चूंकि प्रशासनिक मदद, शासन का संकल्प बड़ा था, इसलिए हम लोग इस काम को कर सके। इसका पूरा डिटेल मैंने बहुत सारा अध्ययन करने के बाद निकाला तो स्किल्ड लोगों की संख्या पूरे 3rd वर्ल्ड में हिंदुस्तान में सबसे कम है और स्किल ही हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे जीवन को तेज बनाता है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता हमको सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में लगभग 23,000 ग्राम पंचायतें हैं, 313 जनपद पंचायतें हैं और लगभग 52, अब 53 भी हो जाएगी अगले चुनाव तक, अभी 52 जिला पंचायतें एग्जिस्ट करती हैं मध्य प्रदेश में। तो इनके माध्यम से चूंकि हमारी लगभग 72% आबादी, जो लगभग 5 करोड़ 60 लाख की आबादी होती है मध्य प्रदेश में निवास करती है, उसके लिए काम हम लोग करना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसको हम लोग क्योंकि DRI के साथ और सारे विशेषज्ञों के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज कि जो NSDC के साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन का काम करते हैं, इसको सरलीकृत करने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से शेयर करूं कि पिछले 5 साल में 6 बार NSDC का पोर्टल चेंज हो गया और हमको सारा का सारा डेटा पोर्ट करने की फैसिलिटी नहीं मिली। तो 62,000 लोगों का डेटा हमने 5 बार अपडेट किया, 5 बार अपलोड किया और इससे भी हमारे मैन पावर को भी दिक्कत हुई, हमारे लोगों का सुविधा भी हुई। लेकिन चूंकि संकल्प सभी लोगों का बड़ा था, ग्राम पंचायत स्तर पे सारे पदाधिकारियों ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत मेहनत की, इसलिए हम इसमें सफल हो सके। अभी कुछ इसमें होमवर्क हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है बहुत सारे। चूंकि मैं फिलहाल इंदौर में ज्यादा समय गुजारता हूँ तो मैं यहाँ के जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है, सेलन है या कोई भी ऐसी जगह जहाँ सर्विस प्रोवाइडिंग का काम होता है, वहां मैं जाता हूँ।
तो मैं देखता हूँ कि सर्विस प्रोवाइडर कोई और है, लेकिन काम करने वाले हमारे ग्राम के लोग, जो खुद उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाली संस्था खुद बन सकते हैं, खुद बना सकते हैं। दूसरी चीज कि जब वो स्किल्ड हो जाता है तो मैंने एक चीज और महसूस की कि फिर वो अपने इसी काम को बेहतर प्राइड के साथ कर सकता है। अभी तक अपने परंपरागत काम को करने के साथ उनके साथ वो वाला प्राइड नहीं है जो स्किल्ड और सर्टिफाइड होने के बाद उसके पास आता है। तो इसमें भी मेरा ये अनुभव रहा है कि स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ग्राम पंचायतें जो 23,000 हैं, जितना उनका खुद का सेटअप है उससे वे मदद तो करती हैं, लेकिन हमको इस काम के लिए ग्राम पंचायतों को भी और मदद करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का साइज हिंदुस्तान के सबसे छोटे साइजेज में से एक है। औसत बेस डेटा उसका 1,000 की आबादी पे ग्राम पंचायत का है। औसत अभी ज्यादा आता है, लेकिन 1,000 की आबादी में ग्राम पंचायत हो सकती है। ग्राम पंचायत छोटी हो गई उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत के पास सफिशियंट स्टाफ नहीं है। ले दे करके उसके पास एक सेक्रेटरी है और एक ग्राम रोजगार सहायक है, क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से चलती हैं। तो इन दो लोगों के ऊपर सारे प्रशासनिक दारोमदार ग्राम पंचायत का आ जाता है। तो हम लोग इसमें 2-3 प्रकार से काम कर रहे हैं। पहली चीज कि मौजूदा जो सेटअप है, एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है, इससे हम और बेहतर आउटपुट कैसे ले सकें, ग्राम पंचायत को हम और कैसे स्ट्रेंथन कर सकें ताकि वो और बेहतर तरीके से हमको रिजल्ट दे सके, बेहतर लोगों को सर्विस डिलीवरी का काम कर सके, स्किल डेवलपमेंट पे हमको मदद कर सके। इन सारी चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोगों के तमाम ट्रेड्स में, तमाम चीजों में इसमें काम करने की इच्छा है। हमारी आधारभूत तैयारी, आधारभूत सर्वे हम लोग इसका कर चुके हैं। डीआरआई के साथ क्योंकि आज चर्चा चल रही है, सारे पुरोधा लोग यहाँ पर बैठे, उनसे एक मेरा अनुरोध भी है कि एनएसडीसी के साथ बतौर पायलट, क्योंकि डीआरआई उनके एक पार्टनर के तौर पे सामने आए, ताकि जो एफिलिएशन से लेकर के गैर जरूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आवश्यक है, उन सब के लिए हम लोग सहमत हैं काम करने के लिए, क्योंकि कई चीजें उसकी इतनी जटिल हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पे उसको अपलोड करना, ग्राम पंचायत स्तर पे उसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो डीआरआई से मेरा ये अनुरोध है कि अगर डीआरआई मध्य प्रदेश में उसको पायलट के तौर पर लेगा और एनएसडीसी के एक रीजनल संस्थान के तौर पे, ताकि हमारा जो एनएसडीसी से जो काम है वो डीआरआई से ही हो जाया करे। हम लोग लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ ट्रेन कर सकते हैं, जिसकी संभावना मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग सभी जोन, सभी रीजन मैंने व्यक्तिगत तौर से भी घूमे हुए हैं। तो मुझे ये जानकारी है कि लाखों लोग हम लोग ऐसे सर्टिफाइड तैयार कर सकते हैं, जो न सिर्फ हमारे प्रांत में, हमारे देश में, बल्कि विदेशों में भी जाकर के अपने स्किल डेवलपमेंट से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं और अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन कर सकते हैं। एक चीज इसमें अंत में मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसकी एक तैयारी ये भी की है कि लोकल लेवल पे इसका डेटा अवेलेबल हो कि ग्राम पंचायत स्तर पे कितने लोगों को किस किस स्किल से कनेक्टेड लोग हैं, जिनको वर्तमान जीवन के साथ साथ सामान्य स्किल अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट की जरूरत है। दूसरे वे लोग जिनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है। तीसरे वे लोग जिनको सर्टिफिकेशन की जरूरत है। और इनको कहाँ कहाँ हम इनका आगे मदद ले सकते हैं, कहाँ कहाँ इनको हम प्लेसमेंट दे सकते हैं, प्लेसमेंट दिला सकते हैं, इन सब का भी डेटाबेस हम लोग अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं, जिसका बेसिक डेटा रिकॉर्ड जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पे और जनपद पंचायत स्तर पे संधारित होगा, मेंटेन होगा। ये हमारी मूल तैयारी है और हम लोग इस कोशिश में और हैं कि किस प्रकार से इसकी जटिलता को हम कर सकें, सरल भाषा में समझा सकें। बहुत सारे कंटेंट का हमने स्थानीय भाषा में, सामान्य बोलचाल की हिंदी में तर्जुमा अनुवाद भी कराया, जिससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं उनको भी इस बात के लिए तैयार किया कि आप हमारी लोकल लैंग्वेजेस में एग्जाम लीजिए, लोकल लैंग्वेजेस में अपने कंटेंट बनाइए। उस कंटेंट डेवलपमेंट का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी क्योंकि लगभग 1 वर्ष मध्य प्रदेश में पंचायत राज पदाधिकारियों को हुआ है, तो उनकी ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने अनिवार्य तौर से मॉड्यूल में इस पोर्शन को रखा है कि स्किल डेवलपमेंट में पंचायतों की प्राथमिकता हो और वो इस विषय पे काम करें। मेरी ओर से इतना ही। भैया एक चीज बता देना प्लीज जी। जो कभी पेशा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था मध्य प्रदेश में जी, जो ग्राम पंचायत को आप लोग ने जो कोर्स किया था सिखाने के लिए, वो भी स्ट्रेंथनिंग लोकल बॉडीज था।
जी। 2 मिनट में आप बता दीजिए कि कभी वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था पैसा का मध्य प्रदेश में, वो 5 दिन में जो कोर्स किया और सब जो रेलेवेंट पंचायतों थे और जिला पंचायत था उसको कैसा आपने ट्रेन किया, वो एक एग्जाम्पल है कि हाउ डू वी स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज। तो उसमें 2 मिनट के लिए आप शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल भैया, जब पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ और हम लोगों को ये टास्क मिला कि आपको इन 89 ब्लॉक्स में पैसा एक्ट की ट्रेनिंग देना है और सभी लोगों को इस बात को समझाना है, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क पूर्व से हम लोगों के यहाँ हो रखा था। हम लोगों ने उसको, जो मध्य प्रदेश शासन ने नए प्रावधान पैसा एक्ट के लागू किए थे, वो नए प्रावधानों के साथ और फील्ड में अब चूंकि हमको अवसर आया है तो कैसे हम लोगों को इस बात के लिए तैयार कर सकें। इन 89 ब्लॉक्स में सबसे पहले हम लोगों ने लगभग 500 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए और इन सब की चूंकि हमारे पास समय बहुत कम था तो ऑनलाइन ट्रेनिंग की, ऑनलाइन कंटेंट मटेरियल सब उनको हम लोगों ने पहुंचाया और फिर उन सभी 500 लोगों ने 89 ब्लॉक्स के जो लोकल वर्कर्स थे, जो हमारे फील्ड लेवल के सरकारी मुलाजिम थे, जो सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, जो वहाँ ग्राम सभा के लोग थे, उन सबको हम लोगों ने इस बात की ट्रेनिंग दी कि पैसा एक्ट क्या है, इसके तहत कैसे काम करना है, आगे क्या होना है। ये तो सामान्य जानकारी उनको 5 दिन में हम लोग पहुंचाए और वहाँ वो काम शुरू हुआ। फिर उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म हम लोगों ने शुरू किया, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। लगभग 500 व्हाट्सएप ग्रुप हमने पूरे मध्य प्रदेश के 89 ब्लॉक्स में बनाए, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े और उनसे एक रेगुलर फीडबैक हम लोगों को आने लग गया कि इस पे लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे उन लोगों को इसकी सूचना प्राप्त हो रही है, क्योंकि समितियों का गठन, उनकी बैठक, उनकी प्रोसीडिंग लिखना, उनका फॉलो अप लेना एक बड़ा काम था। लेकिन बहुत शॉर्ट नोटिस में एक बहुत बड़ी संख्या को हम लोगों ने कैच किया, सोशल मीडिया का उसमें इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इसकी सबसे अच्छी बात थी कि पूरा का पूरा काम लगभग 0 बजट का था। इसमें हम लोगों ने कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया, सिर्फ हमारे को जितना डेटा खर्च हुआ होगा कुल मिला के वही खर्च था। बाकी हम लोगों ने इसमें कोई व्यय नहीं किया और लाखों लोग इससे हम लोगों से जुड़े और उनको हम लोगों ने पैसा एक्ट के बारे में अपडेट किया और उसमें उन लोगों को शामिल किया। अब बहुत सारे लोग वे भी निकल करके सामने आए जो इस बात में हम लोगों से मिले, जिनको पैसा एक्ट लागू होने से फायदा हुआ। बहुत सारे लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भैया थोड़ा पैसा एक्ट क्या है बता देना प्लीज। आप काफी लोग को पता नहीं होगा। पंचायत एक्सटेंशन टू मध्य प्रदेश में जो छठी अनुसूची के तहत आने वाले 89 ब्लॉक्स हैं कि लगभग 5,200 ग्राम पंचायतें हैं जो शेड्यूल्ड एरिया में आती है, जहां मूलतः ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। वहां राज्य शासन ने पैसा एक्ट लागू किया, जिसमें ग्राम सभा वहां की सबसे ज्यादा ताकतवर हुई। वहां के स्थानीय रीति रिवाजों, उनकी परंपराएं, इसके संवर्धन, इसके संरक्षण, उनकी संपत्तियों के संरक्षण, इन सब से संबंधित ये एक एक्ट है जो मध्य प्रदेश के 89 विकास खंड के लगभग 5,211 ग्राम पंचायतें एग्जैक्टली उन ग्राम पंचायतों में लागू होता है और लगभग 13,000 गांव इसके तहत आते हैं। इसके तहत प्रत्येक ग्राम में जो रेवेन्यू विलेज था या फॉरेस्ट विलेज था, वहां एक समिति का गठन हुआ और इसके अलावा 6 समितियों का गठन हुआ, जिसके तहत वो अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं, इसके तहत नियम बना सकते हैं। उन नियमों के तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत सारे विषयों पर जो हीनियस क्राइम है उनके अलावा पुलिस अगर कोई एफआईआर दर्ज करेगी तो इनकी अनुमति लेगी तभी एफआईआर दर्ज करेगी और अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो इनको सूचना देगी। वहाँ के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसका मालिकाना हक इन संस्थाओं को मिला, इनकी कमेटियों को मिला। और अगर कोई ऐसा काम जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में जो होता है, उससे संबंधित कोई कमेटी उसके रेट्स तय करना या उसका कोई भी ऐसा उससे संबंधित काम जो ये यहाँ की कमेटी करना चाहती है, तो उनको ये राइट मिला कि वो इस काम को कर सकेगी। आदिवासियों की जमीनों के क्रय विक्रय के संबंध में इनको अधिकार मिला ताकि इनकी जमीनों को बाहर के लोग गैर कानूनी तरीके से क्रय न कर सके, उसमें इनको प्रोटेक्शन मिला। और बहुत सारे इनके स्थानीय परंपराओं, लोक रीति रिवाजों को भी इस एक्ट के माध्यम से
प्रोटेक्शन मिला है। इनकी लगभग सभी जगह 6 कमेटियों का गठन हुआ, इन कमेटियों की बैठक हुई, उनकी प्रोसीडिंग्स हुई और विद इन प्रोवाइडेड पावर उनको वो सारी चीजें करने की छूट मिली जो वो कर सकते हो अपने स्थान पे। मध्य प्रदेश में इसके बहुत अच्छे परिणाम हुए। लगभग 5211 पेसा मोबिलाइजर्स भी अपॉइंट हुए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जो पेसा एक्ट के प्रचार प्रसार के लिए भी काम करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। प्रत्येक जिले में लगभग 20 जिले हैं जहां ये विकास खंड स्थित है मध्य प्रदेश में, वहां एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी काम करता है। पेसा एक्ट निश्चित तौर पे एमपी में आदिवासियों के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर के तौर पे लागू हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आगे हमको और देखने को मिलेंगे। भैया, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य अपना रखा और पैसा के बारे में भी इसके बारे में बताया। हजारों लोग आपके नेतृत्व में MISRD के माध्यम से उनको स्किलिंग की ट्रेनिंग मिली, विशेष रूप से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के व्यक्तियों को। तो एक बड़ा अच्छा काम इसमें अमिताभ भैया एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, वो मेरे ध्यान से स्लिप हो गया था। जब हम लोगों ने रूरल मिशन की ट्रेनिंग की, चूंकि सभी जगह एनजीओ काम करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, दिल्ली के एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझे कहा कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, तुम मर जाओगे। तो मैंने उनको ये कहा कि अब साहब आज ना मरेंगे तो क्या कभी ना मरेंगे, हम अब करेंगे इसको। जी। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि चूंकि हमारे बनते हुए मकानों में ट्रेनिंग हुई तो 1 रुपया भी हमको रॉ मटेरियल में खर्च नहीं हुआ और शासन के लगभग 150 करोड़ रुपए की बचत हुई। 150 करोड़, माने ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एक्चुअली आज की जो हमारी वेबिनार है उसकी ब्यूटी भी यही है कि जो लोग आज जुड़े हैं इसमें, उनके व्यवहारिक अनुभव और जो इनिशिएटिव उनने ग्राउंड लेवल पे लिए, चाहे सुनील जी ऐसा पहले वक्ता रहे हों, चाहे हमारे मेयर साहब रहे हों, और अभी आपके द्वारा भी जो हमें जानकारी मिली, तो निश्चित रूप से जो आपके इनिशिएटिव और टू डू वाली जो एक अप्रोच से आप लोगों ने काम किया, तो बड़े सकारात्मक परिणाम उन लोगों के जीवन में भी आए हैं जिनके लिए आप लोगों ने काम किया है, और निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। सतीश कुमार तिवारी जी अपना हैंड रेस किए हुए हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हो भैया अनम्यूट कीजिए उनको। सतीश कुमार तिवारी जी। सर अगर आप सुन पा रहे हैं आप बोलिए। सतीश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि पंचायती राज जो संस्थान है, एक तरह से देखा है तो पूरे प्रशासन की डेवलपमेंट प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 40 साल से, खास तौर से पब्लिक हेल्थ में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बजाय कोशिशों के इनका इन्वॉल्वमेंट उस तक नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे। पहली बात तो यह है कि इनके पास थोड़ा सा संसाधन की कमी है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा इनके संसाधन कैसे बढ़ाए जाए। खास तौर से अर्बन एरिया में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो किस तरह से इनको सशक्त किया जाए, किस तरह से संसाधन के रूप में कैसे सशक्तिकरण इनका हो, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है, मैंने देखी कि ये जहाँ तक विकास की बात होती है या स्वास्थ्य की बात होती है, वहाँ इन लोगों को थोड़ा सा ओरिएंटेशन नहीं है कि क्या करें, मॉनिटरिंग कौन से इंडिकेटर को मॉनिटर करें। जहाँ तक SDGs की बात कर रहे हैं आप, तो कौन कौन से SDG इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारी ग्राम की संस्थाएं मॉनिटर कर सके अपने क्षेत्र में। और जहाँ इस तरह की ट्रेनिंग इनको दी गई वहाँ रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। मेरा अनुभव केरला का है, वहाँ बहुत अच्छे अनुभव रहे। केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर इनको उस किस्म का हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी। तो मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो किस तरह से इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाया जाए, खास तौर से अर्बन एरियाज में, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ तक इनके पास वर्कर्स हैं तो सबसे ज़्यादा वर्कर्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके पास बम्बई के पास है, करीब 998, वो भी बहुत कम पर लैख पॉपुलेशन कंपेयर टू न्यूयॉर्क जहाँ की हजारों में होती है। तो आपके पास आदमी कम है, पहले। दूसरी बात, संसाधन कम है और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन नहीं है। यह अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ पब्लिक हेल्थ का।
तो किस तरह से इसमें सुधार किया जाए, किस तरह से उनको सशक्तिकरण किया जाए, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। सब एक का प्रश्न का तो उनका पहले का तो जवाब अभी उनने जो ऐड किया था उसी में था। जैसे उन्होंने मशीनरी ट्रेनिंग की बात की कि वो बिना पैसा खर्च किए मेसन्स का ऑन साइट पे ही उनकी ट्रेनिंग हो गई। और उससे पहले अपने साथ जो मेयर साहब जुड़े थे उन्होंने भी अर्बन बॉडीज में जिस तरह से उनकी स्किलिंग के ऊपर वो काम कर रहे हैं बिना किसी पैसे को खर्च किए। एक जस्ट उन्होंने 15,000 का एक पुरस्कार अपना डिक्लेयर किया और डिपार्टमेंट्स में आपस में ही एक कंपटीशन हो गया कि हम बेहतर अपना दें। तो बाकी सराफ साहब से मैं कहूंगा कि वो कुछ ऐड करना चाहें इसमें। छोटी ही 2 चीज है इसमें अमिताभ भैया, कि पहली चीज के ग्राम पंचायतें अपने ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को विकसित करें, कि रूरल एरिया में चुनाव से वोट से चुनाव होता है तो इस बात को लेकर के सरपंच या पदाधिकारी घबराते हैं कि अगर हमने इनसे टैक्स इम्पोज किया तो ये हमको वोट नहीं देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पलरी ग्राम पंचायतें रही हैं। मैं ग्राम पंचायत को कोट करना चाहूंगा। धार जिले में एक नवादपुरा करके ग्राम पंचायत है, बहुत इंटीरियर में, निसरपुर विकास खंड में। अविश्वसनीय काम इस ग्राम पंचायत ने किया है और आज से 7 साल पहले इस ग्राम पंचायत ने ये अनाउंस कर दिया कि हमको शासन के किसी भी अनुदान की जरूरत नहीं है। और आप उस इंटीरियर की ग्राम पंचायत में जाएंगे तो आप हैरत कर जाएंगे, किसी विकसित शहर जैसी सुविधाएं उनने खुद ही विकसित कर ली है। ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू डेवलप किया और दूसरी चीज सेंस ऑफ ओनरशिप, जिसको वो ये मानते हैं कि ये काम हमारा है, इस गांव में अगर कुछ अच्छा होगा तो हम, हमारा समाज और हमारे बच्चे ही इसका उपभोग करेंगे। तो उन्हें ऐसा कोई सेगमेंट नहीं, हम कितने सेगमेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ हो, महिला बाल विकास हो, उनका स्कूल हो, साधन सुविधाएं हो, अवेयरनेस की बात हो, कभी कोई सामाजिक सरोकार आ जाए तो उससे संबंधित कोई बात हो, पूरी ग्राम पंचायत एकजुट है, बैठ करके फैसले लेते हैं। किसी भी बेहतर इनोवेशन के लिए वो तैयार रहते हैं। कोई परंपराएं जो समाज के विपरीत जाती हैं उन परंपराओं में संशोधन के लिए तैयार रहते हैं। मानी ये चीजें बहुत बड़ी हैं जो उस ग्राम पंचायत के लोगों ने करके दिखाई और हम लोगों ने उसका भी रिसर्च किया और वहां एक चीज महसूस की कि हमको चैंपियंस भी तलाशने हैं। अगर ग्राम पंचायत के चैंपियंस को हमने ग्राम पंचायत लेवल पर अपने लूप में ले लिया तो उनके पास वो सारे लोकल टैक्ट होते हैं जो अपने पूरे समाज को मोबिलाइज कर सकते हैं, अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को भी उसको हमने अपना मास्टर ट्रेनर भी बनाया, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी बात हो सकता है भाषण प्रवचन जैसी लगे, लेकिन क्योंकि उस सरपंच ने करके दिखाया है, वो जब बोलता है तो उसकी बात का इंप्रेशन बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे सरपंचों को भी हमने आइडेंटिफाई किया है और उन लोगों को भी हम दूसरी ग्राम पंचायतों में भेजते हैं ताकि वो उनको बता सकें कि उनकी ग्राम पंचायत ने कैसे इस काम को किया है। ताकि उसकी बेस लाइन यही है, सेंस ऑफ ओनरशिप। ये जिस ग्राम पंचायत में, जिस गांव में जितने अच्छे तरीके से आएगी उतने बेहतर तरीके से वहां ये काम होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स, कोई और पूछना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो? योगेश जी, आप इसमें ऐड करेंगे? बात हो रही थी तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है विषय। इसमें वो जो एडोवेशन वाली बात है, कुछ और एडोवेशन को लेकर मैं एक एग्जांपल 17 का ही देना चाहता हूँ। फायर डिपार्टमेंट का, फायर ब्रिगेड को लेकर हमारे 17 में 7 गाड़ियां थी, 2 चलती थी, 5 पंचर पड़ी रहती थी। उनको 7 को तैयार किया और उसका जो स्टाफ है उसको हमने पूरा 100% नया यूनिफॉर्म खरीदवाया और उनको वॉकी टाकी अवेलेबल करवाई। अब है छोटी सी बात, फायर ब्रिगेड बनवा दिए, वॉकी टाकी दे दी, यूनिफॉर्म बनवा दिया। आज दे फेल्ट कि हम कोई पुलिस वाले हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। इसको हमने प्रैक्टिकल किया और उसके कारण से हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का पहला फायर डिपार्टमेंट है जिसको ISO सर्टिफिकेशन हो चुका है। तो हम नया इनोवेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलने वाला है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे ध्यान में है तो मैंने बताया। लोगों को इनकरेज करते रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग देती रहनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा।
हो भी रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। अगर कोई और ऐड करना चाहते हो तो करें, या फिर मैं अपने अंतिम जो वक्ता है उनकी ओर चलूं। कोई और कुछ ऐड करना चाहते हो? हम लोगों के बीच में हमारे संगठन मंत्री अभय महाजन जी भी हैं, चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। वो अगर चलिए, तो अब एक बात और बोल दूं क्या? जी, अभय जी कुछ जोड़ना चाहते हो? मैं बात जोड़ना चाहता हूँ। जी जी जी, सतना बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, इसे बताने की इच्छा होती जी। सतना में अंडरग्राउंड पावर केबल करना, ये एक बड़ा भारी टास्क था, बहुत कॉस्टली है। हमने एक्सपेरिमेंट के लिए 1.5 किलोमीटर 3 करोड़ रुपया खर्चा आया और वो हमने कर दिया। वो अभी इंदौर में, जबलपुर में नहीं है। सर्किट हाउस जहां पर है, सर्किट हाउस से लेके और पार्क होटल जो नया फ्लाईओवर बना है, हमने पूरा फुल्ली अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी, पावर केबल। और जितने सड़क में ट्रांसफार्मर और सभी ऐसे मतलब वायर लटक रहे हैं, खंभे में कोई चढ़ नहीं सकता, ये सब कुछ हम उसको धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। ये प्रयोग किया है, इस तरह के प्रयोग भी हमने अर्बन उसमें शुरू किया है। थैंक यू। बिल्कुल, वो सतना में उसका प्रभाव दिखाई देता है। स्मार्ट सिटी सतना लगता है कि अगली बार की जो अपनी होता है एवोल्यूशन, तो उसमें सतना बहुत आगे आएगा, और ये हम लोगों का विश्वास है। तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी बनाया है, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। जी 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 भैया, अभय भैया। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है। मैं तो अपना सामान्य ज्ञान वृद्धि कर रहा था कि जितने लोग, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो ग्रामीण अंचल में काम करते हैं, तो इस सब दृष्टि से तो वसंत भैया का ये प्रयास, एक प्लेटफॉर्म पर इतना काम करने वाले इतने सारे अनुभवी लोग, तो भैया 26-27 फरवरी को सभी लोग चित्रकूट प्रत्यक्ष आकर जुड़ेंगे। मेरा सबसे आग्रह निवेदन ये है कि ये जो अपनी एसटीजी की वसंत भैया, बिल्कुल भैया, जी 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 जी, तो सभी लोग आएंगे, और जो गांव में छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं, तो उन सबको देखकर, और फिर ये सब अनुभवी लोग कुछ उसमें भी कुछ सुझाव देंगे, तो जो गांव में प्रयत्न कर रहे हैं, जो नानाजी द्वारा प्रारंभ किया गया स्वावलंबन अभियान है, तो उसको हम लोग और आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरा बस इतना ही कहना है। थैंक यू भैया। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्टर अर्चना पाटनकर जी अपने बीच में है। बहुत वर्सटाइल उनका सीवी है। Dr. Archana Patankar ji is a consultant, researcher, and practitioner with substantial national and international experience in the field of climate change, health, and environment. She is currently associated with NSDC, National Skill Development Corporation, as a senior consultant economist and working on data and demand-driven skilling and livelihood generation initiative for vulnerable communities in rural areas. Archana ji brings over a rich experience of conceptualizing, operationalizing, and leading policy and practice-oriented assignments across different verticals such as climate change, vulnerability and adaptation, urban health issues, applied environmental economics, and economics of energy sector. She has worked with global institutions such as World Bank, Asian Development Bank, UNEP, DTU Partnership, Oxford Policy Management, and Asia Pacific Network for Global Change. She holds PhD in economics from Indian Institute of Technology, Bombay, and has taught economics for more than a decade at undergraduate and postgraduate levels. She also completed LLM in Energy and Environmental Law at Birmingham Law School, University of Birmingham recently. She will speak on about new avenues of skill development to strengthen sustainability and adaptive capacity of local communities. Madam, please.
you. Please unmute. Ji. Thank you, Amitabh ji. Am I audible? Yeah. Yeah. And, so thank you, Vasant ji, for inviting me to participate in this webinar. So at the outset, I would just like to introduce the work that me and my team are carrying out at NSDC. So this is a very new initiative of NSDC, which we call as NSDC Impact Team. Vasant ji हमसे आके मिले भी हैं हमारे ऑफिस में. He has met our team. And under the NSDC Impact Team, we are trying to undertake skilling interventions which have not been undertaken through the regular programs of NSDC in the past. In the sense, हम समझते हैं that skilling intervention is so important for the country, given that we have a very young workforce, जिसे हम हमारा demographic advantage या demographic dividend कहते हैं. But in order to strengthen that demographic dividend and in order to become a developed nation by 2047, skilling interventions at all levels are extremely critical for us. So we do have people who are, coming out of schools and colleges and technical institutions, but somewhere we feel that there is a big gap between the skills demanded by different segments, by different industries or service sector, or for that matter even in the rural areas, and the supply of those skills. So our effort is to reduce this mismatch, reduce this gap between demand and supply. What we are trying to do through the NSDC Impact Team is basically looking at the target groups where skilling interventions are not reaching through the regular NSDC programs. So when we started studying all those, so when I joined NSDC Impact Team about 4 months back, our first assignment was to really look at which are the target segments that we are not touching upon right now. And we found that, through PMKVY or through the apprenticeship schemes, which are normally run through NSDC programs, through these schemes, we are reaching out to, different segments, but we still believe that there are these groups, particularly vulnerable communities in rural areas. To give an example, let's say tribal communities or small and marginal farmers, their farmer producer organizations, SHGs. These are the groups that we had not touched upon through our skilling initiatives earlier. For that matter, we also know that there is a large segment of youth which we term in the skilling vocabulary as NEET population, which is they are not in education, they are not in training, and they are not in employment. So आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं, but we want to tap into this youth segment. They might be young people who have just come out of the schooling or education system, but they are not sure about what they want to do. They may not have the right skills to get employment, or these might simply be women who have decided for some reason, for some family commitments or any other reason, to remain out of the workforce. But they are very much part of our overall workforce, and they should come into the productive line. So for all these categories, and of course our small enterprises in both rural and urban areas, whom we term as nano enterprises. So these might be very small businesses which also require some amount of skilling. So skilling सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो आज स्कूल और कॉलेज से आएंगे और उन्हें एक कोर्स करना है, उन्हें एक सर्टिफिकेट लेना है, and then they have to start working somewhere. Skills are required for all at all levels. So for a young person, skilling is required. For somebody who has worked for 10 to 15 years, reskilling is required, or upskilling is required. For somebody who is trying to change from one line of activity to another line, a complete reskilling will be required. जैसे ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे पहले कोल माइनिंग और because of coal mining predominantly जैसे livelihood opportunities होते थे, अब हम 2030, 2050 की बात कर रहे हैं जहाँ पे for climate change mitigation, we want to move towards creating a more
greener option for us for power generation. So usme they will find that the mining jobs are no longer available the way they were available earlier. So उनके लिए कुछ अलग तरह का reskilling होना बहुत जरूरी है. So we have been finding out these different target groups, and then we started thinking about how do we reach out to them and what sort of skilling interventions can we undertake. So we have now 3 distinct programs for these targets groups. One is an initiative which we are trying to undertake specifically tailor-made for the rural populations, and that's basically for small and marginal farmers, for SHGs and the rural youth who would like to skill themselves in certain areas. So you might have heard that there is the Skill India digital portal which is now available. There are a lot of options available for everyone who register themselves on that portal, and through which we can reach out to more number of people. For small and marginal farmers, we are looking at training which can be given in climate smart agricultural practices. So there are a lot of NGOs which are, of course, trying to look at this climate smart agriculture and different practices like organic farming or multi-cropping system and so on. We want to kind of institutionalize this by doing some pilot programs and by demonstrating that this can be scaled up to other areas as well. Then for small enterprises, nano enterprises, we are not looking at just simply skilling workers per se, but we are looking at really skilling entrepreneurs, because we believe that in today's world, the younger population coming into the workforce, they not only aspire to have jobs, but they actually also aspire to set up businesses of their own. So in fact, we always say that India is the startup capital for the world. So ये startups सिर्फ वो नहीं है जो unicorns बनना चाहते हैं, but these are also startups at really ground level, grassroots level, who are interested in setting up or who are looking at these very small business opportunities, and what they require is some kind of hand-holding coming from institutions like us who can provide that kind of entrepreneurship development training to them. And by entrepreneurship development training, we actually mean a hand-holding in terms of digital literacy, financial literacy, trying to tell them how they can access credit, what are the different government schemes or other schemes available to them, how they can avail of those schemes, and so on. And things like, how you become a part of a supply chain, how you become a part of the online business opportunities which are available now. So there is this wide field out there. There is a big target group available, and we want to reach out to them through these programs that we have. And the third is, as I mentioned, the NEET category. We are particularly interested in finding out how do we reach out to these people who are not in either employment or education, who are not even getting any training right now, and both in rural and urban areas. But for our team, our focus right now is rural areas. And like how we have been talking to Vasanji about different schemes, we have been talking to other institutional partners and trying to. So as we speak, there are proposals in the pipeline. There are also some programs which are now just getting initiated. We are looking at the Vibrant Villages program and trying to do skilling over there to meet the local demands for skilling. So our idea is not to give traditional skilling programs to people just to make them like, a source of labor for some industry somewhere, or where they would migrate and then they would work in, let's say, construction sector or any other industry, but they would be able to do something where they are right now. The idea should also be to reduce migrations to whatever extent possible and find livelihoods within their own areas and contribute to the local area development. Now, as far as all these skilling interventions are concerned, our idea is very clear that each skilling intervention that we propose through the NSDC Impact Team should be weighed or should be assessed on 3 criteria. One is this criterion of the extent to which this skilling intervention is going to contribute to either climate change adaptation or mitigation. Because we know that
at the global level, as a country, we have made tremendous commitments to the humanity, saying that, you know, we want to reduce our carbon footprint, we want to move towards a greener economy, and at the same time, we also want to protect our population from the from whatever effects of climate change that they are going to face in the short to medium term. So climate change adaptation is going to be extremely critical for the rural areas. And that is the reason why we are talking of climate smart agriculture. We are talking about multi-cropping system. We are talking about empowering rural youth, because we know that almost every rural household in some way or the other is primarily dependent on agriculture, but they should also have some alternative livelihood options, so that climate change adaptation is something that, you know, they can so it meets this criteria of climate change adaptation. We increase the adaptive capacity of the rural households. Secondly, we also create the resilience of our rural systems, whether it is agricultural system or whether it is forest dependent communities, which is our tribals, and how they can cope up with the future changes that climate is going to bring for them. So that's one criterion for all our skilling interventions that we are proposing. Second criterion is the SDGs and how well some of these interventions can contribute to the SDGs. So just to name a few SDGs, we are looking at SDG 1, which is no poverty. So all skilling interventions have to aim at reducing, to the extent possible, the poverty or economic empowerment of rural households should be the primary aim of these skilling interventions. Second is, of course, zero hunger. So we are looking at climate smart agriculture as something which would, you know, take care of the food security for future. We are looking at specific interventions, specific programs for women, either for SHGs or for small women entrepreneurs, to enable them to again achieve economic empowerment, and at the same time some sort of gender equality, a platform for them also to come forward and take their rightful place in the economy. We are looking at SDG 8, which is decent work and economic growth. We are looking at SDG 12, which is responsible consumption and production practices, and SDG 10, which is talking again about reduced inequality, besides, of course, SDG 13, which is the climate action. So as I said, the second criterion for us is the SDGs that, you know, we would contribute to through the climate interventions. And the third criterion is the convergence with the existing schemes, because we are very well aware that, you know, there are a lot of schemes at the state level, at the district level, which are being implemented by the state governments. The district administrations are taking interest in those schemes. They are implementing them on the ground at the grassroots level. We want to see where our proposal can converge with those schemes. So we don't want to either get into the space where, you know, something has already been happening. We would actually like to get into a space where we see how best we can contribute. And the contribution from NSDC would come firstly in the form of some kind of a broader course content that we will be able to develop, some kind of a skilling ecosystem that we will be able to develop. Secondly, the funding part of it. So besides the core NSDC funding, which comes from our own programs, there is also CSR funds through which we are undertaking skilling interventions. So as we speak, there are a few CSR funding interventions that we are already undertaking in, let's say, Jharkhand, for instance, or in other states. So CSR funding is also one option available to us. So what we are really looking at is partnering with good institutions. In fact, today, some of your participants, we have already started dialogue with them. They are already in partnership with us. Vasanji, of course, through DRI is our partner, and we have been talking about these new initiatives and how we can work in Chitrakoot as well as in other areas in parts of central India to implement some of these schemes. So as far as NSDC is concerned, we want to really look at skilling interventions from a different lens.
We want to reach out to those target groups, to those vulnerable people whom, traditionally our schemes might find it a little tough to reach out to because of, certain restrictions when it comes to, our traditional courses or skill interventions have to fit into the QP-NOS kind of format. And then, unless there is a qualification framework attached to it, it becomes difficult for us to fund those programs. So we are treating these as special projects. We are looking at putting in CSR funds and other core funds from NSDC. And this is the pathway that we would like to take in future in order to improve the skilling ecosystem. And we would like to work with these institutions at the grassroots level very closely, because they are finally going to be our implementation partners. It is not NSDC which is going to come and do the actual skilling, or it is not NSDC which has the network at the grassroots level to reach out to people. We need implementation partners. And I highly encourage people to come and, have initiate a dialogue with us, and then see how we can, take some of these interventions forward. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. रियली जो आज की जो लीडरशिप है एनएसडीसी की, बहुत अच्छे से जो एक उन्होंने पूरा प्रोग्राम चलाया है और कई इनिशिएटिव्स जोड़े भी हैं, और साथ में कितना एक बड़ी लंबी एवेन्यू उन्होंने क्रिएट की है स्किलिंग के लिए। और भी अपने जो पार्टनर्स हैं वो लोग भी अगर जुड़े एनएसडीसी के साथ में मिलके तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो स्किल काउंसिल्स हैं इनकी बनाई हुई, और निश्चित रूप से डीआरआई के साथ मिलकर जो एनएसडीसी का काम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा, उसमें अच्छे परिणाम आएंगे। कोई भैया अमिताभ 2 मिनट, हम जो एनएसडीसी के साथ जो आचार्य जी ने बात किया था, हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं 3 पर्टिकुलर पायलट्स के बारे में। एक जो आचार्य जी ने कहा था कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और निकरा जो प्रोजेक्ट्स है, वी आर नाउ इन टॉक्स विद एनएसडीसी टू formulate modules which will be educational modules for NICRA, for climate resilient agriculture. We are in process of talks with them to start a pilot on that. Number 2, for entrepreneur training, as you in Chitrakoot we've got a big center, Uday Mehta जो entrepreneur trainer center है, उसमें short duration courses का कैसा हम लोग एक हब बना सकते हैं, वो भी बातचीत हो रहा था। और तीसरा जो मोस्ट इनोवेटिव एंड फॉर मी मोस्ट एक्साइटिंग जो पायलट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, वो मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं अभी, वो जो कन्वर्जेंस वाले हैं, उसमें हम लोग जो पंचायत जो है, व्हेन पीपल कम टू द पंचायत एंड दे आस्क फॉर सम सर्विसेज, उन लोग भी पता नहीं क्या आना है और पंचायत भी नहीं जानते उसको कैसा मदद करो। तो हम लोग एक प्रोग्राम जो नानाजी और दीनदयाल शोध संस्थान जो अपना स्वावलंबन अभियान का प्रोग्राम है, उसमें जो की पर्सनल थे वो एक समाज शिल्पी दंपति थे, और समाज शिल्पी दंपति के माध्यम से हम लोग ने पूरा गांव की काम कर लिया था, पूरा अपना डेवलपमेंट काम। वो कभी हम लोग ने वो सोशल ऑडिट किया 5 साल स्वावलंबन अभियान होने के बाद, हम लोग को ऐसा लगा था कि वो जो सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो समाज शिल्पी दंपति बाहर से आते थे। तो हम लोग ने वो प्रोग्राम को एडजस्ट किया और सहयोगी कार्यकर्ता का प्रोग्राम किया था, का 5 अलग अलग सहयोगी कार्यकर्ता हम लोग के गांव में काम करते हैं। तो वी एंड व्हेन एमडी ऑफ एनएसडीसी चित्रकूट आए थे और उसको बहुत बढ़िया लगा ये पूरा प्रोग्राम। उसने कहा कि हम लोग ये 5 को एक क्यों नहीं बना सकते, और उसको एक पंचायत मित्र कह के ही विल बी द इंटरफेस बिटवीन जो गांव वाला है, जो नीड है, और पंचायत जो सर्विसेज देते हैं। जैसा एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसका जो डेटा हम लोग कलेक्ट करके एक ऐप में डाल देंगे, तो जो उसके पास वहाँ गांव में रहकर जो अपॉर्चुनिटीज उसके पास है, जो स्कीम्स उसके लिए अवेलेबल है, उसका पूरा जानकारी उसको मिल सकता है। उसको कुछ पशु के काम करना है, क्या अवेलेबल है, पूरा मिलेगा। तो ये हम लोग एक मॉड्यूल बना रहे हैं, और इसके साथ दोनों इंस्टीट्यूशन
स्ट्रांग होगा, उसकी रीच स्ट्रांग होगा और इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा। तो ये पायलट्स, 3 पायलट्स का बातचीत हो रहा है स्पेशल प्रोडक्ट्स जो एनएसडीसी का उसके साथ, तो वो वेरी एक्साइटिंग एंड होपफुली वी विल गेट समवेयर विद दैट। जी। So वसंत जी, I wanted to add to this कि आपके साथ जब हमारा ऑफिस में डिस्कशन हुआ था इसके बारे में for this third component, उसके बाद we also started looking at this seriously and said that we would like to do this even in other places. तो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बनाया है और उसके ऊपर अब काम शुरू करना चाहते हैं। वो कॉन्सेप्ट है कौशल मित्र का। तो जैसे एक माई स्कीम करके देयर इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, सो सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो उस पर है। देयर इज ऑल्सो वन मोबाइल ऐप। तो हम ये चाहते हैं कि वी वांट टू ट्रेन सम रूरल यूथ इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्कीम्स and then helping others in their areas to apply for those schemes through the mobile app or through the website. So उसके लिए जो digital literacy लगेगी, उसके लिए कुछ और facility लगेगी, वो हम सब provide करने के लिए तैयार है। And we want to give rigorous training and create these Kaushal Mitras. And the idea is that this Kaushal Mitra should not remain only for my schemes or for giving knowledge about our skilling interventions to the rural areas, but ये आगे चल के स्टेट गवर्नमेंट के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी एक वहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने कि जिनके जरिए जो भी नए स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है वो जिसे हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये लोग वहाँ पे पहुंचा सके। So that concept also actually, Vasant ji, आपके साथ बात करने के बाद ही we started thinking about this and we developed that because we wanted to kind of institutionalize it. एक pilot तो हम करेंगे और then उसके बाद we will try to take it to other places also. So that I mean, next week and I'll come and sit with you and discuss this. Sure, definitely. Most बाकी पैनल में या और जो अपने साथ जुड़े लोग हैं उनमें से कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? तेजेंद्र जी, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? सूरज जी? हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा और वो ये है कि जैसे कि इन्होंने बताया, योगेश जी ने बताया और उसके बाद हमारे एमडी महोदय महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट में बताया और अभी अर्चना जी ने कहा कि स्किलिंग एट लोकल लेवल, ओके, उसके लिए प्रावधान होना चाहिए सिस्टम और एक इसको कहते हैं ना योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मैं एक बताना चाहूंगा कि कई बार होता है कि प्रावधान हो जाता है और लोगों को मतलब काम भी सौंप दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो ज्यादा प्रभावी हो उसके लिए हमको जो मेन सिस्टम है, खास करके अर्बन एरिया में जिनका काम है वाटर सप्लाई, वेस्ट रिमूवल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, म्युनिसिपल रोड, स्टॉर्म वाटर इत्यादि, उसको लेकर के एक प्रयोग किया गया था साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, जहां की हालांकि कानून नीति सब कुछ था, लेकिन म्युनिसिपल एरियाज में लोगों की प्रोटेस्ट ओवर लैक ऑफ सप्लाई ऑफ बेसिक सर्विसेज वाज वेरी वेरी हाई, ओके, एंड रीच्ड ऑल टाइम हाई इन 2012 एंड नियरली ब्रॉट डाउन द नेशनल गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक प्रोफेशनलाइजेशन फ्रेमवर्क बनवाया था फॉर लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, लेकिन उसमें उन्होंने ये पाया कि जो सर्विस डिलीवरी के मेन एजेंट थे म्युनिसिपल प्रशासन के, नगरीय प्रशासन के, और मेरे ख्याल से ये ग्रामीण प्रशासन के लिए भी उतना ही उपयुक्त होगा, उनके लिए कोई जो कार्यवाहक लोग थे उनकी क्षमता के लिए कोई स्किल एक्विजिशन फ्रेमवर्क नहीं था। तो इन्होंने सबसे पहले एक छोटे रूप में नेल्सन मंडेला बे एरिया में इन्होंने इसको चालू किया और एक स्किल एक्विजिशन फ्रेमवर्क बनाया, जिसमें वो देख सकते थे कि जो लोग शहरी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उन लोगों को क्या स्किल एक्विजिशन चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है और उनकी कैपेसिटी इंडिकेटर क्या है। उसको लेकर उन्होंने एक तरीका इजाद किया ताकि उनका क्षमता संवर्धन
स्किल डेवलपमेंट, सर्विस डिलीवरी के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रयोग किया जा सके। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये देखते हैं कि हम, और इसमें the positive point about this is that it also builds citizen confidence in the skill and capabilities of the municipal administration. So if we want to work on the demand side for skill requirements in municipal services, so this might be something to look at. We should have a skill acquisition framework that maps specific skills that are required for each of these segments, and then skills are provided accordingly. For instance, for waste management. Thank you. Oh yeah, thank you. Anybody else? जी सर। बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि मैं सोच रहा था कि आज का सब्जेक्ट था सो इम्पोर्टेंट that strong local governance for effective skill development. I was just thinking that effective skill development may be in the area of social marketing. Right? We have been talking about entrepreneurship, but I think local self-government can play a very, very vital role in providing, skills to our youth, to our, rural masses, to anybody in the whole area of social marketing. I heard, somebody speaking, the mayor was speaking that, okay, breastfeeding should be promoted. And the Prime Minister is trying to have, some breastfeeding corners in the city. Maybe why can't, all the municipal hospitals under the command of, corporation or municipality can make it, mandatory that every hospital should be baby friendly and breastfeeding friendly. Similarly, all the schools under municipal corporation can become, child friendly. They can also become sanitary friendly. They should have, menstrual hygiene regulation program. The provision for disposal of sanitary napkins. I mean, they're not there. Now, what I'm trying to say is that we have experimented with these panchayats to promote, breastfeeding, to promote, immunization in the areas, to promote, locally available nutrition foods. So this is, but then it requires a skill. It really requires, a specific marketing skill to sell an idea which is promoting social cause. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग पंचायती राज बने, स्किल डेवलपमेंट के लिए भागीदारी हो उसकी, लेकिन इन एरियाज में जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ब्रेस्ट फीडिंग हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, माल न्यूट्रिशन रिडक्शन हुआ, यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट हुआ, सैनिटरी मार्ट प्रमोशन हुआ। हमें याद है तेंदर हमें सपोर्ट करेंगे कि हम लोगों ने कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल में पंचायत को इन्वॉल्व करके सैनिटरी मार्ट्स खोले थे, और वहाँ लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ वो लोग स्टार्टिंग प्लेट बेचते थे और वो लोग सारे सैनिटरी वेयर बेचते थे, एंड इट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. Similarly, Rajasthan also we worked with पंचायत राज गवर्नमेंट देयर, पंचायत के साथ, और डीफ्लोरेशन फिल्टर बेचे जहाँ भी फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम थी, वहाँ एनजीओ के साथ मिलके. तो इस तरह के कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने है वाटर क्लीनिंग के, इस रेन हार्वेस्टिंग में उनको इन्वॉल्व किया. तो दिस वी हैव टू थिंक. Entrepreneurship is fine, but then the social objectives should not be left behind if our ultimate aim is to accelerate achievement of sustainable development goals. I will stop here. Very nice sir. आपने समराइज कर दिया पूरा आज का वेबिनार, यानी कि और किसी को बताने की जरूरत भी इसमें नहीं है. आपने पूरा जिस्ट एक होता है और समराइज करना इसको, तो आपके ये लास्ट का जो आपने अपना दिया तो उसमें सब समराइज हो गया. वसंत भैया कुछ ऐड करना चाहें या फिर हम लोग इसको कल्याण मंत्री के साथ समाप्त करें? एक लाइन बस मैं इसमें अनुरोध करना चाहूंगा अमिताभ भैया, ये है कि जो एनएसडीसी के भी वरिष्ठ अधिकारी क्योंकि मौजूद हैं इसमें, इनका सारा कंटेंट जो हमारे रूरल एरिया से रिलेटेड है वो सब इंग्लिश में है, और बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश में भी, कठिन इंग्लिश में है. अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए जो उपयोगी कंटेंट है, अगर ये चाहें, क्योंकि जब कभी दिल्ली वाले उसका अनुवाद करते हैं तो गूगल से देख के अनुवाद कर देते हैं, वो अंग्रेजी से भी कठिन हिंदी हो जाती है. तो अगर ये चाहें, हमने बहुत सारा ऐसा काम अपने यहाँ किया हुआ है, इनके बहुत सारे कंटेंट का सामान्य बोलचाल की हिंदी में हम लोग मटेरियल बना सकते हैं. तो अगर ये अनुमति देंगे तो हम लोग ये काम कर सकते हैं. हमारे पास बड़ी टीम है इस काम के लिए. हम साथ में बात करते हैं, हम दिल्ली में मिलने वाला है, साथ में आपको भी ये साथ में हम तीनों जोड़ के ये काम साथ में कर देंगे. ये बहुत महत्वपूर्ण काम है. और चलिए आज का समराइज करने की, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सतीश सर ने उसको समराइज कर दिया, जो जिस्ट उसकी निकालनी थी, और अच्छे से आज का संपन्न हुआ. ये
एवरी सैटरडे हम लोग मिलते हैं, मतलब 4 से 6 का ये फिक्स टाइम है हमारा। लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। और जैसा भी हमारे संगठन मंत्री अभय महाजन जी ने कहा कि सभी लोग नानाजी की पुण्यतिथि पे हम लोग इंटरनेशनल सेमिनार अपना ऑर्गेनाइज करते हैं चित्रकूट में। जैसा कि एक प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट पे की डिस्कोर्स के लिए, अपना जो जिस तरह से डेवोस में इकोनॉमिक मुद्दों पर होता है, तो अपने यहाँ रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज पर 2 बड़े सफल आयोजन हुए। उनका जो पब्लिकेशन है वो हम लोगों ने किया है। मेरा अगर किसी को उसका तो पीडीएफ कॉपी भी हम उसकी शेयर कर सकते हैं, दोनों कंपेंडियम्स की। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं मैं, आप सब लोग जुड़े। आगे भी अपना विषय नहीं भी हो तब भी, क्योंकि ये विषय एक ऐसा है कि लगातार चलते रहने वाला है। पहले एमडीजी था, अब एसडीजी हुआ, और बियॉन्ड 2030 भी कोई ना कोई डीजी रहेगा ही रहेगा। तो इसमें हम लोगों की क्या भूमिका रहे, भारत की क्या भूमिका रहे, तो उस पर हम भारतीयों को अभी से सोच के तैयार रहना चाहिए विश्व में अपनी भूमिका निभाने के लिए। तो इसी का एक प्रयास है ये दीनदयाल शोध संस्थान का, आदरणीय वसंत भैया के नेतृत्व में। तो हम लोग इसमें अपने अपने योगदान दें, और जो हमारे पास अगर कुछ रिटन मटेरियल हो करने के लिए तो शेयर कर सकते हैं, तो हम आगे कंपेंडियम्स में रखेंगे। मैं कल्याण मंत्र का आधी लाइन बोलूंगा, उसके बाद इसको समापन करेंगे सब एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.